Hello students, welcome back. Students, today we are continuing with the topic quantum numbers. Principal quantum number which determines the main energy shell or size of the energy shell to which electron belongs, we have discussed. And then students, we have discussed that in a given shell how many subshells are possible, and students, number of subshells they are given by the azimuthal quantum number or angular quantum number, which also describes or explains the splitting of spectral lines in electric field. So students, today we are continuing with the same topic, that is the third type of quantum number, which is called magnetic quantum number. So students, we have magnetic quantum number. Now, what is magnetic quantum number? पहले ये आपको समझना होगा स्टूडेंट्स. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m with a subscript L because values of magnetic quantum number they depend on angular or azimuthal quantum number, or sometimes we denote magnetic quantum number by m only. Now students, but इसका physical meaning क्या है? What is the physical significance of magnetic quantum number? So students, मैं आपको बता दूं that whenever electrons they revolve around the nucleus, because of orbital motion of the electron around the nucleus, they have what? Some magnetic field associated with them. That means we can consider an electron as a tiny magnet. So students, when these electrons, that means their electron clouds, are placed in external magnetic field, the electron clouds can have different spatial orientations with respect to a standard set of coordinate axes. That means an electron cloud can have many orientations in three-dimensional space. Students, in सभी possible three-dimensional spatial orientations को हम orbitals कहते हैं. So that means magnetic quantum number gives what? The spatial orientations, gives spatial orientations of electron cloud in external magnetic field. Now since each spatial orientation means one particular orbital, so we can say that magnetic quantum number gives what? Gives the possible orbitals in an atom. So आपको magnetic quantum number से ये पता चलेगा that orbitals कितने हैं and उनका spatial orientation क्या है. जैसे principal quantum number बताता है size, आपका azimuthal quantum number बताता है shape of the orbital, और ये आपको बताएगा अब orientation of the orbital. और simply जितने orientations है उतने orbitals है. So we can simply say that magnetic quantum number determines the number of atomic orbitals. Now students, आपका ये जो number of orbitals है, so for a given subshell, which is defined by what? L, जिसको L define करता है, the possible orbitals, ठीक है, कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 2l plus 1 होते हैं. So the possible orbitals which are actually 2l plus 1, they are actually the values of m. So जितने orbitals हैं उतने m के values होते हैं. So students, ये जो m का value है, it will range from, अब ये 2l plus 1 तो total values होगी, but कहां से कहां तक होगा? -l to 0 and then to +l. So these many orbitals are possible for a given subshell or which is defined by L value. That means अगर आपको azimuthal quantum number पता है, आप number of orbitals बता सकते हो from the values of magnetic quantum number. So students, let's apply this. Now say अगर मेरे पास
कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, से फॉर s सबशेल. Now s subshell is defined by L0. So students, जो m का वैल्यू होगा या ml का वैल्यू होगा वो माइनस एल से प्लस एल, बट एल यहां जीरो है तो ml भी जीरो ही हुआ. और सिंपली स्टूडेंट्स, एक वैल्यू m का होने का मतलब देयर इज व्हाट, वन ऑर्बिटल. सो दैट मीन्स आपका s सबशेल के लिए एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है. और वैसे भी स्टूडेंट्स 2l प्लस 1 का वैल्यू भी कितना होगा, 2l इज 0 प्लस 1, सो वी हैव 1. सो दैट मीन्स देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल. नाउ स्टूडेंट, सिमिलरली फॉर p सबशेल, सो कोई अगर इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है, से फॉर p सबशेल. नाउ स्टूडेंट, a p subshell is defined by L is equal to 1. तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो वैसे तो 2l प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 3 ऑर्बिटल्स होंगे. स्टूडेंट्स, उनके जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा. सो वो होगा माइनस एल, दैट इज -1, 0 एंड +1, बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से प्लस एल तक होगा. सो हियर वी हैव हाउ मेनी ओरिएंटेशंस, 3 ओरिएंटेशंस, -1, 0, +1. स्टूडेंट्स, इसमें आपको बता दूं मैं, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओरिएंटेशन PZ. नाउ एंड दिस एंड दीज टू -1 एंड +1. सो स्टूडेंट्स, ये याद रखना, अगर आपका ml का वैल्यू से 0 है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू PZ एटॉमिक ऑर्बिटल. बट स्टूडेंट, अगर ml का वैल्यू ±1 है तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईदर px और py. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप इसमें -1 से अगर px के लिए कह रहे हो तो +1 py के लिए हो जाएगा, और अगर आप कह रहे हो px के लिए से अदरवाइज आपका +1 है तो -1 py के लिए हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पॉसिबल ओरिएंटेशन. एंड स्टूडेंट्स, लेटर ऑन आप तब ये सब देखोगे कि जब आप एस सबशेल ड्रॉ करते हो, देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल. सो आप एक बॉक्स या एक सर्कल बनाओगे, बट एक पी सबशेल में वी हैव हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्बिटल्स, 3. सो स्टूडेंट्स, एक पी सबशेल में इसीलिए हम 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस को इस तरह से, या फिर आप 3 बॉक्सेस एक साथ बनाओगे. सो एक पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है. नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली फॉर डी सबशेल कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकते हैं वो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा. नाउ स्टूडेंट्स, डी सबशेल, अब एक डी सबशेल को L डिफाइन करता है, तो डी सबशेल के लिए L का वैल्यू स्टूडेंट्स 2 होगा. ठीक है. सो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml कितना होगा, -2 से +2, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2, which means we have 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. So students, 5 orbitals possible है. So that means an electron in a d subshell can have 5 possible spatial orientations when placed in external magnetic field. और वैसे भी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये 5 ऑर्बिटल्स जो है, आप 2l + 1 से भी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं. सो ऑर्बिटल्स का नंबर 2l + 1 से वो भी देखना 5 ही आएगा. 2 इंटू l इज 2 + 1, सो वी हैव 5 ऑर्बिटल्स. बट उन 5 ऑर्बिटल्स के लिए ओरिएंटेशंस अलग अलग है. स्टूडेंट्स, उनको हम डेजिग्नेट करते हैं लाइक 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग v से d z² होता है. ठीक है. -2 और +2 ml अगर आपका ±2 है तो स्टूडेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर आर 2 d ऑर्बिटल्स, dxy एंड dx²y². इनके शेप्स के बारे में बाद में आपको बताऊंगा. देन अगर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +-1 है, दैट मींस ये दोनों, देन दिस डिनोट्स dyz एंड dxz ऑर्बिटल. सो इन टोटल वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5th 5 ओरिएंटेशंस. हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एक
पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करता है. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके डी सब शेल. सो डी सब शेल में हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं? 5. नाउ स्टूडेंट्स, वो 5 ऑर्बिटल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सबकी एनर्जी बराबर होगी, इक्वल होगी. सो ये वो 5d ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जिनमें से एक होगा dxy, एक होगा dxz, एक होगा dyz, एक होगा dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक होगा dz स्क्वायर. सो दीज आर द 5 orbitals that a d subshell can have. Now students, f subshell में कितने orbitals होते हैं? Now उनको देख लेते हैं. See students, एक f subshell में, now for f subshell L3 होता है, ठीक है. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, शॉर्टकट बता देता हूं, वो तो हम वैसे भी बता सकते हैं. इट इज 2l plus 1, so that means 7 orbitals are possible. That means कोई भी इलेक्ट्रॉन f सब शेल का जो है when placed in external magnetic field can have 7 possible orientations. Now these orientations are designated by a specific magnetic quantum number. So इनके लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. So these are the designations of those 7 orbitals. So see this now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमारे पास 7 different orientations उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पॉसिबल होंगे, which means we have 7 different orbitals. इनका भी एक definite designation है, means according to their orientations, means जो उनका प्रोबेबिलिटी है किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा उसके हिसाब से उनका नाम होता है, जिस तरह से d ऑर्बिटल्स का और p ऑर्बिटल्स का है. बट स्टूडेंट्स, रेयरली आपको f ऑर्बिटल्स के एग्जैक्ट डेजिग्नेशंस का कोई क्वेश्चन आएगा. सो आप उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में. सो अगर मैं अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का यूज करूं, सो स्टूडेंट्स, L का वैल्यू आपको सबशेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है. और अगर आपको सबशेल पता है तो आप कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें और उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सी, मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको बता देता हूं. नाउ स्टूडेंट्स, L के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, एंड दे आर व्हाट, वी कैन हैव पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L 0, वी कैन हैव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज हो सकते हैं. 0 जो है वो S सबशेल को डिफाइन करेगा, 1 P सबशेल को, 2 T subshell, 3 F subshell, 4 G subshell and so on. Now, अब स्टूडेंट S subshell में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, या आप इसको 2l plus 1 से निकाल सकते हैं. L का वैल्यू 0 है, so 1 होगा. Now, एक ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स, this I have told you that an orbital can have maximum of 2 electrons. So that means एक ऑर्बिटल है तो 2 electrons. P subshell में we have 3 orbitals, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज थे. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, 3 into 2. d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन d सबशेल आर 10. f में देयर आर 7 ऑर्बिटल्स, एंड देयरफॉर 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड. g में देयर आर 9, एंड देयरफॉर 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated. So this is very, very important to note that how many electrons, how many orbitals, how many subshells, ठीक है, are present in any given atom, and students उसका आपको quantum number से पता चलेगा. Now one more thing students, the most important application of magnetic quantum number is that
It explains the splitting of spectral lines in magnetic field. स्टूडेंट्स आपको याद होगा बोहर्स मॉडल का एक ड्रॉबैक था, दैट बोहर्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बोहर्स मॉडल में सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की बात होती है, बट एनर्जी लेवल के अंदर भी कुछ और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको सबशेल्स के अंदर भी कुछ और डिफरेंट या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है अब उस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सकता है. कैसे? लाइक मैंने कहा से मेरे पास n अगर 2 है, ठीक है, सो इससे लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, फर्स्ट शेल में फॉल करेगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी. बट स्टूडेंट्स, इन द लाइट ऑफ क्वांटम नंबर अगर n 2 है तो l के 0 और व्हाट, दो वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल है. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 2s and this corresponds to 2p. That means आपके पास n is equal to 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बोहर्स मॉडल में एक्सपेक्टेड था एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी, बट अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि फर्दर उसके भी अंदर एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2s स्टेट एंड 2p स्टेट. सो दैट मीन्स इसका स्प्लिटिंग पॉसिबल है एंड दिस एक्सप्लेन्स स्टार्क इफेक्ट. उसके बाद स्टूडेंट 2s में वी नो दैट 2s का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक ही वैल्यू है. सो 2s में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका फर्दर स्प्लिटिंग इवन मैग्नेटिक फील्ड में भी पॉसिबल नहीं है. बट स्टूडेंट, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 2p में है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, -1, 0 एंड +1. सो दैट मीन्स इसका फर्दर फिर से एक स्प्लिटिंग हो सकता है. सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट, this explains Zeeman effect, that is splitting of spectral lines in magnetic field. So students, this was about the quantum numbers. But students, अभी तक हमने जो 3 quantum numbers study किए हैं उन 3 quantum numbers से line spectra of atoms explain हो गया था, except the existence of doublets or triplets. Means कई बार देखा गया था especially in line spectra of multi-electron systems that there are closely spaced lines. या तो doublets थे या triplets थे, means 2 lines भी हो सकती है, 3 lines भी हो सकती है. Students, इनका जो existence था that cannot be explained on the basis of principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. So students, in order to explain the existence of these doublets or triplets in line spectra of multi-electron systems, fourth quantum number, which is known as spin quantum number was proposed or introduced. अब स्टूडेंट्स, ये स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? स्टूडेंट्स, मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट, एंड जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड से रिवॉल्व कर रहा है, सो उसका सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ही नहीं होगा, लाइक अर्थ जिसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. सो अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स, उसका सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ही नहीं होता, उसका एक स्पिन मोशन भी होता है. सिंस इलेक्ट्रॉन भी एक टाइनी मैग्नेट है, सो इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव spin motion. That means electrons can spin about their own axis either clockwise or anti-clockwise. Means suppose student अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है and this is the chosen axis, अगर इसकी बात करो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है about its own axis either clockwise या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है. दिस इज जस्ट लाइक क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूं तो ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन. सो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कैन हैव व्हाट, 2 स्पिन्स. एंड स्टूडेंट्स, इन 2 स्पिन स्टेट्स है जो इलेक्ट्रॉन की है, इनको आपको बताने के लिए एक क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर. सो दीज 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are designated by spin quantum number ms or s. And students, since only 2 possible spin motions are allowed, either clockwise or anti-clockwise, this quantum number has only 2 values, either plus half or minus half, or we simply write ms is equal to plus minus half.
स्टूडेंट्स जब ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक व्हाट, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो स्टूडेंट्स इसको डेजिग्नेट करने के लिए इसीलिए वी यूज व्हाट, एरोज पॉइंटिंग इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. इसमें एक होगा फॉर से क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट. अगर इसके लिए आप -2 लिख रहे हैं तो इसके लिए +2 +½ भी लिख सकते हैं, सॉरी -½ एंड +½. सो दीज आर द पॉसिबल स्पिन क्वांटम नंबर्स. सो दैट मीन्स स्टूडेंट स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा दैट इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर एसोसिएटेड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन अबाउट इट्स own axis either clockwise or anti-clockwise, and these two spin states of electrons are represented by arrows because these spinning electrons produce angular momentum. Students वो spinning angular momentum कितना होगा वो भी बता देता हूं. So spin angular momentum associated with an electron. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो म्यू एस से डिनोट करेंगे उसको, एंड इट इज s+1 √h upon 2 pi. And student here s we take +½ हम उसका मॉड्यूलस यानी मोड लेंगे, सो पॉजिटिव में ले लेंगे, से +½ ले लेंगे. सो इससे पता चल जाएगा. बट स्टूडेंट्स अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन वी टेक टोटल स्पिन, और फिर उसको पुट करके हम उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, टोटल स्पिन से आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी पता चल सकता है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी मींस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का उसमें सिंगलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, वो बता सकते हैं, एंड इट इज गिवन बाय 2s+1. हियर s इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर. मींस से अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक का स्पिन +½ एक दूसरे का -½ तो टोटल 0 हो जाएगा. सो उस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, दैट मीन सिंगलेट बनेगा. बट स्टूडेंट्स अगर सपोज आपके पास कोई एक ऐसा अरेंजमेंट है एंड वी हैव 1 2 3 बट दे ऑल आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, तो टोटल जो स्पिन है S कैपिटल, इट विल बी थ्राइस ऑफ 1/2 3/2 यहां पुट करेंगे. सो स्टूडेंट्स ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3/2 +1, सो दिस विल बी व्हाट 4. इस तरह से आएगा. उसी तरह से किसी अरेंजमेंट में अगर टोटल स्पिन स्टूडेंट्स 1 आता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, 2s+1 में पुट कर दो, इट विल बी 2 × 1 + 1 दैट मीन्स 3, सो ट्रिपलेट बनेगा. सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलेगा. एंड स्टूडेंट्स दिस फर्दर लेड टू द फैक्ट दैट एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दे मस्ट बी विथ ऑपोजिट स्पिन. सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वांटम नंबर्स के बारे में. So overall now we can conclude that quantum numbers give complete address of electron. Electron कौन से energy shell में है, this is given by principal quantum number. कौन से सब शेल में है, this is given by azimuthal quantum number. कौन से ऑर्बिटल में है, this is given by magnetic quantum number. And then उसका स्पिन स्टेट क्या है, स्पिनिंग मोशन को डेजिग्नेट करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए वी हैव spin quantum number. That means the exact information or complete information about or address भी कह सकता हूं of electron जो है, it is given by the quantum numbers. Now students, let's discuss some questions. So I have questions. Now सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो एक frequently asked type क्वेश्चन होता है, which is आपको कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए होंगे और पूछा होगा इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज which of the following set of quantum numbers is not possible? And students, I have options A, B, C and D. N, L, magnetic quantum number M, L, and spin quantum number MS.
in first option we have 3, 2, 0 plus half. In second option I have 2, 2, 1 and plus half. Then we have 1, 0, 0 minus half. And lastly we have 3, 2 minus 2 and plus half. Now students, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट वी हैव टू सी. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है अगर, तो L आपको पता है 0 से लेके 1, 2 तक कोई भी हो सकता है, 2 अलाउड है. और अगर आपका L 0, 1, 2 है तो M का वैल्यू 0 भी हो सकता है. दैट मीन्स आपका -2, -1, 0, +1, +2 मैक्सिमम, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अलाउड है. सो 0 भी अलाउड है स्पिन. सो दैट मीन्स इनमें से ये वाला तो पॉसिबल है. आपको बताना है तो पॉसिबल नहीं है. n अगर 2 है स्टूडेंट्स, n अगर 2 है तो L का वैल्यू 0 एंड 1 ही हो सकता है. 2 अलाउड नहीं है. सो दिस इज नॉट अलाउड एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स. 1 के लिए 0 अलाउड है और M0 L0 है तो M0 भी अलाउड है और स्पिन -½ हो सकता है. सो ये भी अलाउड है. N3 के लिए अभी किया था हमने L 0, 1, 2 दैट मीन्स 2 अलाउड है और M -2 से लेके +2 वो भी अलाउड है विच इज गिवन. सो ये भी अलाउड है. सो ऐसा टाइप जो क्वेश्चंस का है स्टूडेंट्स वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. Okay, so students, I have important question. Now, what is the maximum number of orbitals? What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? आपको बताना है maximum number of orbitals that can be identified by n is equal to 3, L is equal to 1, M is equal to 0. And we have options, students. पहला option है 3, then we have 4, then we have 1, and last option we have 2. Now students, अब आप देखो इसका आंसर क्या होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n अगर 3 है, ठीक है, लेकिन आपको उस थर्ड शेल में L का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है. दैट मीन्स आप कह सकते हो कि दिस इज 3p सब शेल, लेकिन M 0 है. अब 3p में स्टूडेंट्स आपके पास 3px भी पॉसिबल है, 3py भी पॉसिबल है, 3pz भी पॉसिबल है. लेकिन इसके लिए से M 0 है, इसके लिए M से -1 है, इसके लिए +1 ले लिया, बट आपको तो M का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है. सो दैट मीन्स आप ये गलती मत कर जाना कि p है तो p में तो आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट स्टूडेंट ये तीनों पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन आपको जो क्वांटम नंबर दिया वो सिर्फ एक ऑर्बिटल का दिया है. सो दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज ओनली 1. और स्टूडेंट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. Now question is, what is the maximum number of electrons? Maximum number of electrons. So here we have maximum number of electrons that can be associated with n is equal to 3, L is equal to 1 and M is equal to -1. Now students, and options we have is what? 2, 10, 6 and 4. Now students, यहां भी गलती कर जाते हैं स्टूडेंट. n अगर 3 है, L 1 है तो स्टूडेंट्स 3p, और 3p मतलब p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट आंसर 6 नहीं है स्टूडेंट. आंसर यहां पर क्यों 6 नहीं है वो सोच लो, क्योंकि आपके पास 3p में से सिर्फ एक ही कोई वैल्यू है. से इट इज ओनली 3px, यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2. सो योर आंसर इज 2 नॉट 6. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.